beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region and beyond, will squarely lie with India. The world is witnessing increased fragility and volatility with a discernible shift towards violence as an instrument for attaining political objectives. Amidst the chaos, Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. Our relations with key global and regional powers, particularly Muslim countries, have further strengthened. Pakistan has persistently proven to be a key contributor towards peace and stability in the region and beyond. Our armed forces contribute immensely to United Nations peacekeeping missions across the globe. भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के लिए गुंजाइश नहीं। हम इनके बयानात से खौफजदा होने वाले नहीं। अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA काकूल की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। सिपा सालार ने कहा, मैं भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार करता हूँ, जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुँचकर भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वाराना कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बाशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ, हम इस मकसद सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। In its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that, like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir.
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने PMA में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर खाक में मिला देंगे। अफगानिस्तान के लोग दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज पर लगाम डालना होगी। पाकिस्तान के बहादुर अवाम की मदद से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. Pakistan expects the ceasefire to continue, followed by a smooth flow of humanitarian relief and reconstruction of Gaza for its people to be able to live peacefully in their homeland. The state of Palestine, based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. Palestine's pain and Kashmiri's subjugation remain festering wounds on the conscience of humanity. गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। पाकिस्तान की मुसलसल काविशों ने गजा अमन का इकदाम आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने PMA में पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, तवक्को है फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक तहसीन है। फ़लस्तीन के तनाज़े का मुनसिफाना हल चाहते हैं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की नागुज़ीरियत और 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर अल-कुद्स अल-शरीफ के दारुल हुकूमत की बुनियाद पर फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की ज़रूरत पर अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा, सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। PMA काकूल में 192वीं लॉन्ग कोर्स, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 40 दोस्त ममालिक के फौजी भी शामिल, जिनका ताल्लुक इराक, मालदीव, माली, नेपाल, फ़लस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया, कतर और बांग्लादेश से है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर हाज़रीन ने खड़े होकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ शमशीर और शील्ड से नवाजा। अफगान तारिकीन की वतन वापसी का फैसला। वज़ीर आज़म की गैर कानूनी अफगान तारिकीन की वापसी के लिए सूबों को ताउन की हिदायत। अफगानिस्तान और अफगानों का मुलविस होना तशवीशनाक करार। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने हमलों को पसपा किया। अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी में इस्तेमाल रोकने के लिए मुतादिद बार मुज़ाकरात किए। अफगानिस्तान का हालिया हमला और खवारिज की दरअंदाजी में साथ देना तशवीशनाक है। अवाम पूछते हैं, हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाएं। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा की शिरकत। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। वज़ीर आला KP की नुमाइंदगी सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने की। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। वज़ीर दिफा का 2 टोक मौक़िफ़। ख्वाजा आसिफ ने अफगान रजीम बनने के बाद पाकिस्तानी कोशिश की तफसीलात भी बता दी। एक्स पर लिखा, वज़ीर ख़ारजा ने 4 मरतबा काबुल का दौरा किया। वज़ीर दिफा और ISI ने 2 मरतबा दौरा किया। नुमाइंदा ख़ुसूसी बर अफगानिस्तान ने 5 दौरे किए। कौमी सलामती मुशीर 1 मरतबा काबुल गए। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 बार मीटिंग्स हुई। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225 मरतबा हुई। अफगानिस्तान को 836 एहतजाजी मरासले दिए गए। पाकिस्तान ने 13 मरतबा अफगानिस्तान को डिमाश किया।
सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। बाजोड़ में सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज में 108 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक, 3 जख्मी। मीर अली में खवारिजियों की बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराने की कोशिश। बर वक्त कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अगर चाहूँ तो ये जंग फौरन खत्म करा सकता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि मुझे ये जंगें रुकवाना बहुत पसंद है। दोनों ममालिक की सरहदी कशीदगी से पूरी तरह से आगाह हूँ। मैंने 8 जंगें खत्म करवाई। नोबेल इनाम नहीं मिला, लेकिन अब परवाह नहीं। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी में तोसी हो गई। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे का मजीद वक्त बढ़ा दिया गया। आरसी जंग बंदी को दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक आला सतह मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को। अमरीकी सदर ट्रंप का अब्राहम मुआहदे में जल्द तौसी का इंदिया। कहा, उम्मीद करता हूँ सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल होगा। सऊदी अरब मुआहदे में शामिल होगा तो सब शामिल हो जाएंगे। उधर यूक्रेनी सदर की अमरीकी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। कहा, मेरा ख्याल है पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं, वरना वो इस तरह बात ना करते। ज़ेलेंस्की भी जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की के कपड़ों की तारीफ भी की। G2G फ्रेमवर्क के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान में फर्स्ट वुमेन बैंक निजकारी के मामले और मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, G2G फ्रेमवर्क के तहत तय पाने वाला मुआहिदा एक अच्छे सफर का आगाज है। फर्स्ट वुमेन बैंक की खरीदारी बारिश का पहला कतरा है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जियो साइंस एंड एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। मंसूबा पाकिस्तान के बातें वसाइल की तहकीक और तरक्की के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। जो फैसले पंजाब हुकूमत ने लिए हैं वो किसी मजहबी जमात या किसी गिरोह या किसी अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं है। वो सिर्फ उस इंतहा पसंद गिरोह के ख़िलाफ़ है। TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है। इस वक्त पंजाब में 144 सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड करना और ये जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। तहा पसंद जमात के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। पंजाब में TLP पर पाबंदी की समरी विफाक को अरसाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, किसी को कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसानी ढाल बनाने वाले कानून से बच नहीं सकेंगे। जलाओ घिराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का इत्तलाक होगा। पंजाब हुकूमत के फैसले इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं, किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं। जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। क्या पुलिस की गाड़ियाँ जलाने से गजा का मसला हल हो गया? रियासत के मामला सियासत से बालातर होते हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, वज़ीर आला KP अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से इजलास में खुद आते तो अच्छा सिग्नल जाता। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब कंटेनर से तकरीर करके आते थे तो परवेज़ खटक और शहबाज शरीफ के दरमियान फ़र्क नहीं किया जाता था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ कहते हैं, वज़ीर आला KPK ने इजलास में शिरकत ना करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। इजलास में शिरकत ना करके सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर
बराए इत्तलात के भी इख्तियार वली ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म का जुमला अपनी तरफ से लगाया, जुमला मैं पूछ कर बताऊंगा। वज़ीर आज़म ने नहीं कहा। वज़ीर आला का ये रवैया गैर जिम्मेदार। पंजाब के स्कूल्स में तलबा के बैग्स की चेकिंग लाजमी करार, सीसीटीवी कैमरे भी लगाना होंगे। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई एडवाइजरी जारी। सिक्योरिटी गार्ड्स चेकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे। पिस्तौल, बंदूकें, छुरियां, कैंचियां लाने पर पाबंदी लगा दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सदर आसिफ अली सरदारी ने जर्मनी की समाजी और माहौलियाती मुआवनत को सराहा। कहा, जर्मन सरमायाकार तवानाई, IT और सनती शोबों में सरमायाकारी करें। उधर सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की सदर मुमलिकत से मुलाकात। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब और अजय बंगा की मुलाकात वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर ख़ज़ाना का आलमी बैंक के साथ शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के आज़म का अयादा। पाकिस्तान के गैस और बिजली के शोबों में इस्लाहात के लिए जामे नुक्ता नज़र अपनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर वर्ल्ड बैंक को सैलाब से निमटने और नुकसानात के जायज़े से मुतालिक बताया। पाकिस्तान की टैरिफ पॉलिसी तैयार करने में आलमी बैंक की तकनीकी मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। पंजाब में ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मिशन। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी की क़यादत में आला सतही वफ़द का चाइना का दौरा। चाइना के सदर फुसो ने वफ़द का इस्तकबाल किया। संजीदा चाइना की जानिब से पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी। सैयद आशिक किरमानी के मुताबिक संजीदा चाइना की जानिब से पंजाब से तिल की दरामद बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कराची में होने वाले सानह कारसाज की 18वीं बरसी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहदा की कब्रों पर हाजिरी देंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी के मुताबिक शहदा के साले सवाब के लिए तमाम इस्लामी कुरान ख़वानी के इज्तिमात होंगे। बहाली जमहूरियत के लिए शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी, एक दम तोड़ गया। मुश्तल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी, पथराव से शीशे तोड़ दिए। कराची में सुई गैस लीकेज से एक घर में खौफनाक धमाका। अयूब गोट में गैस धमाके से घर की दीवारें गिर गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाके के नतीजे में कई मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। कराची कोरंकी एक्सप्रेस वे कचरा कुंडी में तब्दील। कलेक्शन पॉइंट की तरफ मकीन परेशान। कचरे के बायस बीमारियां फैलने लगी। अहले इलाका के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर आए दिन कचरा चलाया जाता है। शदीद धुएं से करीबी आबादियों में सांस की बीमारी है। धुएं से हद निगाह 0 तक पहुंच जाती है। मकीनों का कचरा कलेक्शन पॉइंट आबादी से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा। सरगोदा के नवाही गांव में मुजरे सेहत दूध पीने से जुड़वा बहने जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक बच्चियों हिफ्जा और नौरीन की उम्र 5 माह थी। वालिदा का कहना है बच्चियों को दूध पिलाकर सुला दिया। हालत गैर होने पर रेस्क्यू को बुलाया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों बच्चियों की मैयतें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनीषा स्मगलिंग में मुलव्विस 6 मुलजिम गिरफ्तार। 1,85 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 205 किलोग्राम मनीषात बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, काराशाकाहू, कोयटा, बन्नू और कराची में की गई। अंदरूने लाहौर में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल में बसंत मनाने की तजवीज़। तेज़ धाती, नायलोन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस के एक्शन। गड़ी शाहों में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 2 पतंग फरोश गिरफ्तार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 365 से ज्यादा पतंगे और 8 डोर की चरखियां बरामद। मुलजिम का पतंगे तैयार करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने का एतराफ़।